Flowers bloom for the smile of morn. Everywhere their fragrance scatters to fulfill the day with happiness forever. My dear children, you are the flower of our garden. And today we have gathered here to celebrate yours day. Yes, Children's Day. बचपन में पूछा गया सबसे अधिक सवाल, बड़े होकर क्या बनना है। अब जाकर मिला जवाब, मुझे फिर से बच्चा बनना है। मुझे फिर से बच्चा बनना है। प्रातःकाल की इस स्वर्णिम बेला पर मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। Today, we take immense pleasure to welcome Sister Pratibha AC, Principal, Carmel School, Dioli Dhanbad, who has been our principal for more than 20 years before Sister Selita. Dear sister, it is a joy to have you with us. सुप्रभात। आदरणीय प्रधानाचार्य सिस्टर सैलिटा एसी, उप प्रधानाचार्य सिस्टर प्रतिमा एसी, समस्त माननीय शिक्षकगण एवं आज का यह कार्यक्रम मुख्यतः जिन पर केंद्रित है, अर्थात हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने सुंदर सलोने बच्चे। आज 14 नवंबर के दिन हम स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। आओ इस खूबसूरत सी सुबह की खूबसूरत शुरुआत करते हैं। इस दिन को बच्चों के लिए और खास करते हैं। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यो मां अमृतम गमय। हे ईश्वर, आप मुझे असत से सत्य की ओर ले चलें। हे ईश्वर, आप मुझे अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलें। हे ईश्वर, आप मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें। दीप प्रकाश का द्योतक है, तो प्रकाश ज्ञान का। परमात्मा से हमें संपूर्ण ज्ञान मिले, इस भावना को रख करके I invite Sister Pratibha AC, our admirable principal, Sister Salita AC, Vice Principal, Sister Pratima AC, Coordinator, Mrs. Grace, SPL, Shreya Tripathi, and ASPL, Alpna, to come and light the lamp. But a divine energy keeps our heart and soul pure and serene. हर कार्य की सफलता में ईश्वर का अद्वितीय स्थान होता है। प्रत्येक समारोह का आरंभ, संचालन एवं समापन ईश्वर की अनुमति से पूर्ण होता है। इसी सोच को आधार मानकर मैं शिक्षिकाओं को
ईश वंदन के लिए मंच पर आमंत्रित करती। Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt you paid. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my so glad you're in my life. So glad I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt was paid. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name. Lord, I lift your name. Come on, Lord, I lift your name. Lord, I love to sing the praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. I'm so glad you came to save. You came all the way from heaven, heaven to earth, to show us the way to the cross. Lord, you paid from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. We give you all the praise. Lord, I lift your name on high. We give you all the praise. Because you came from heaven. You came from heaven to earth to show me the way. From the earth to the cross, my debt was paid. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. I give you the glory, Father. I lift your name. Lord, I lift your name on forever and ever. Lord, I lift your name on high. Your emotional, physical, and spiritual protection over our children. Keep evil far from them and help them to trust you as their strength. We pray that you will guard our children's mind from harmful instruction. We pray you will make them strong and courageous in the presence of danger, recognizing that you have overcome and will set right all injustice and wrong one day. Help them to find rest in your shadow. Let the children know that the only safe place is in God. Dear Lord, as we gather here today, let us also pray for those children who don't have the privilege to go to school and for all those who do not have a home to stay, that God may open the hearts of people in government and society and give them the necessary help and shelter they need. For this, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Dear Lord, we pray for all the Carmel sisters. God, give them the strength and good health. Bless them with your grace and wisdom so that they may fulfill the mission of Mother Veronica. We ask this prayer through the intercession of Our Lady Mother of Carmel. Your response,
Hear our prayer. Lord, bless our teachers for their constant efforts and devotion towards their duties. Lord, I pray to bless our didis and bhaiyas for the support and service they provide us. Our Almighty God, grant us endurance and compassion to maintain integrity in our performance. God, fill our life with the gems of kindness and concern for others. Be with us in our journey of friendly service. For this, we pray to Lord. Lord, hear our prayer. रोशनी दूर तक न दिखे जिंदगी में कभी जिंदगी कम लगे जो कभी आदमी से डरे आदमी जो दिलों में कभी प्यार की हो कभी भटके न तेरा इंसान भटके न तेरा इंसान कोई रास्ता निकाल लेना और एक संभाल लेना हमको संभाल लेना हिम्मत हमें तू देना और एक संभाल लेना जीना ना छोड़े हम और कभी जो लगे रोने हो गई भेजना पेड़ों पर पत्तियां तू नहीं संसार डालियों पे परिंदे उतार देना मालिक संभाल लेना हमको संभाल लेना हिम्मत हमें तू देना मालिक संभाल लेना मालिक संभाल लेना हमको संभाल लेना हिम्मत हमें तू देना मालिक संभाल लेना प्यारे बच्चों, एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के अलावा जो सबसे खूबसूरत चीज़ कर सकता है वो है अपने बच्चों के लिए दुआ। आज हम सब ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे बच्चों को एक बेहतर इंसान बनाए तथा ईश्वर की बनाई इस दुनिया की हर एक चीज़ से प्यार करना सिखाए। A very happy Children's Day to all of you. आज थोड़ा सा रिवर्स चल रहा है. Generally you are on the stage singing and I am down below advising you what to do. And I always tell you smile, डरो मत, सामने देखो. लेकिन सच बताओ आज मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा. And I don't know how will the performance be. But if you like the song, you sing along. If you don't like, you have to clap. Got it? All right. So this one is for all those who love English songs. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you imaginary? Where are you now? Atlantis, under the sea, under the sea.
so lost, I'm fading. I'm fading, so lost, I'm fading. ये गाना उनके लिए जो पीछे बैठे हैं। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। तुझको मैं रख लूँगा जहाँ पे कहीं है मेरा यकीन, मैं जो तेरा रहूँगा किसी का नहीं, किसी का नहीं। ले जाए जाए कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाए जाए कहाँ हवाएं हवाएं, बेगानी है ये बागी हवाएं हवाएं, ले जाने जहाँ कहाँ हवाएं हवाएं, ले जाने जाने कहाँ, न तुझको खबर न मुझको पता। This one is especially for class 12, the outgoing batch. मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें लूंगी, सदा रहना दिल में करीबों में। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है मेरा होना तुम्हें मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है। ये दूरियां फिलहाल है। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। सबको गाना पड़ेगा अभी। मेरे रास्ते नजर से मिलाई मजा आ गया, मेरे रिश्ते कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई,
चोट दिल में वो खाई मजा आ गया मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया जोश ही जोश में मेरी आगोश में आके तू जो समाई मजा आ गया मेरे रश के कमर. This one, the last one, is dedicated to all of you. We love you very much, though we scold you at times, but this is the way of showing love. For a teacher is a teacher in school, at home, everywhere. Okay? सर कह रहे कॉन्फिडेंस लाइए मैम, कॉन्फिडेंस. ओके. मुझको न बताए कोई कैसे तुझसे दिल न लगाए कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की काली तिजोरियां, काजल की सिलाई से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रख जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिल बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा रैन सारी तेरी खैर बनाऊं. Happy Children's Day. Thank you, ma'am and sir, for the rocking performance. Dance is the hidden language of soul. We dance for joy, for laughter, for hopes, and for visualizing our dreams. Now, our wonderful audience, put your hands together to welcome on stage our dear teachers with their beautiful moves. Thank you.
इश्क सिखा मैं तो आई जग तज के इश्क सिखा मैं तो यारा तेरा सदके इश्क सिखा मैं तो आई जग तज के इश्क सिखा जब याद करे हुआ मेरी मुझे क्या करवा इस दुनिया की जग मुझे मिल जाए पागल मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया This is our immense pleasure that today our Honorable Sister Pratibha is with us. A warm welcome again, Sister. Honorable Sister Pratibha AC, our respected Principal Sister Salita AC, our Vice Principal Sister Pratima AC, और हम सब के अजीज दिल के करीब प्यारे बच्चों, आज का दिन हम सब के लिए और विशेषकर आप सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज आपका दिन है, बच्चों का दिन, बाल दिवस। आज के ही दिन हमारे पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था 14 नवंबर 1989 को। भारत के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ पंडित नेहरू बच्चों के चाचा नेहरू भी थे। वे बच्चों को बहुत प्यार करते थे और चाहते थे कि जैसे सभी लोगों के लिए
कोई एक विशेष दिन होता है, वैसे ही बच्चों के लिए भी हो, और उन्होंने अपने जन्मदिन को ही बाल दिवस का रूप दे दिया। चाचा नेहरू चाहते थे कि सब बच्चों को बहुत प्यार दें, क्योंकि बच्चे ही भविष्य निर्माता हैं। हम ये चाहते हैं कि हम सब आपको बहुत प्यार दें और बहुत प्यार करते भी हैं, लेकिन कई बार बातों में, समझाने में, पढ़ाने में, बिठाने में हम आप सबको थोड़ा डांट देते हैं, कभी ज्यादा डांट देते हैं, आपकी लैंग्वेज में हड़का भी देते हैं। कई बार टोक कर, कई बार प्यार कर और कई बार डांट कर। हम आपसे कितना प्यार करते हैं और हमारी डांट के पीछे क्या छुपा है, आज मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ। सुनो बेटे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं आज तुम पर बहुत नाराज हूँ। जब तुम स्कूल आए तो मैंने तुम्हें बहुत डांटा। क्यों? क्योंकि आज तुम फिर लेट हो गए। तुम्हारे जूते भी गंदे थे। मैंने तुम्हें इसके लिए भी टोका। जब तुम क्लास में पढ़ रही थी, तुम्हारी कॉपी, किताबें और बस्ता इधर उधर बिखरा था। तुम पेन भी नहीं लाई थी। उस समय भी मैंने तुम्हें टोका। टिफिन करते समय भी तुम्हारी एक के बाद एक मैं अनेक गलतियां निकालती थी। तुमने खाना थोड़ा गिरा दिया था। खाते समय तुम्हारे मुंह से भी आवाज आ रही थी। तुमने मुंह खोल के खाना खाया और तुमने रुमाल का तो इस्तेमाल भी नहीं किया, जो तुम सबकी मम्मी बहुत प्यार से तुम्हारे पास रोज रखती है। और मैंने तुम्हें फिर डांटा। क्यों? क्योंकि तुमने स्कर्ट में ही अपने हाथ पोंछ दिए। यही नहीं, जब मैं क्लास से जा रही थी, तुमने उदास चेहरे से मुझे थैंक यू मिस कहा। तब भी मैंने तुमसे कहा, अपनी कॉलर ठीक करो, यू हैव टू बी अ ब्रांड। गेम्स पीरियड में भी मैंने तुम कैसे खेल रहे हो पूरे कपड़े गंदे कर दिए, यहाँ तक कि मोजों में भी तुम्हारे छेद थे, और मैंने इसके लिए भी तुम्हें टोका, और वो भी तुम्हारे दोस्तों के सामने। ओहो, जब कहा कि जब तुम्हें खरीदने पड़ेंगे ना, तब समझ में आएगा, ये मम्मी पापा की मेहनत की कमाई है। आई नो, शायद मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया होगा। क्या तुम्हें याद है कि फिर जब स्कूल की छुट्टी हुई तो तुम दौड़कर मेरे पास आई और मैंने कहा, सीधे घर जाना, इधर उधर नहीं। तुम्हारी मम्मी और कहीं कहीं तुम्हारे पापा भी तुम्हारा इंतजार करते होंगे। फिर भी सब कुछ भूलकर पूरे दिन भर की डांट, मार पीट, वैसे मारते तो अब हम लोग नहीं हैं बिल्कुल भी, फिर भी जो कुछ भी झिड़की, सब कुछ भूलकर तुम मेरे पास आई और तुमने कहा, गुड आफ्टरनून मैम, और तुमने मेरी तरफ अपना प्यार भरा हाथ बढ़ाया और मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। तुम्हारे नन्हे हाथों की जकड़न ये बता रही थी कि तुम्हारे दिल में ईश्वर ने प्यार का ऐसा फूल खिलाया है जो इतनी उपेक्षा के बाद भी नहीं मुरझाया। और मुझे लगा कि ऐसा नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, असल में मैं तुम्हें दिन भर इसीलिए डांट रही थी कि मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करती हूँ और दिल से ये चाहती हूँ कि मेरे अलावा मेरे बच्चों को कोई और जरा कर तो दिखाए। हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा, पर कभी कभी एक बच्चे से जरूरत से ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं। तुम कितनी प्यारी हो, कितनी अच्छी। तुम्हारा नन्हा सा दिल इतना बड़ा है जैसे पहाड़ियों के पीछे से उगती सुबह। हम जानते हैं कि अगर मैं रोज तुमसे ये कहूंगी तो शायद तुम्हें यकीन ना हो और शायद तुम समझ भी नहीं पाओगे कि हम सब तो आपकी भलाई चाहते हैं, आपके आगे बढ़ने के लिए आपसे कहते हैं, आपको रोकते हैं, आपको टोकते हैं और आपको डांटते भी हैं, कभी कम कभी ज्यादा, इसलिए कि आप आगे बढ़ो, निरंतर लगातार
उन्नति के पथ पर अग्रसर रहो। ऊंचे उठो इतना कि जितना आकाश है, जहां जाओ वहीं अपनी स्वर्णिम रश्मियां बिखेर दो। जाओ और अंधेरे में दीपक जला दो, रोतों को हंसा दो। इस दुनिया के लिए कुछ करो, बहुत कुछ करो, बहुत 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 कुछ करो। धरा हिला गगन गुजा, नदी बहा पवन चला। धरा हिला गगन गुजा, नदी बहा पवन चला। विजय तेरी हो जय तेरी, जो किसी जला जला। धनुष उठा प्रहार कर, धनुष उठा प्रहार कर। तू सबसे पहले वार कर, सिंह सी दहाड़ कर, सत्य की पुकार कर। रुके न तू, झुके न तू, थमे न तू, थमे न तू। सदा चले थके न तू, रुके न तू, झुके न तू, थमे न तू, थके न तू, रुके न तू, रुके न तू। धन्यवाद। कहाँ हो गई कटिंग? Thank you, ma'am, for your inspiring words. Our dreams get the canvas of reality in it. Our hopes and inspiration get the wings of height from it. It creates the passion to achieve something in life. Do you know what is it? It is our school. So, our teachers are going to exhibit the beautiful sketch on the importance of school. विद्यालय एक ऐसा स्थान जिसके विषय में सुनकर ही पवित्रता, ज्ञान एवं नैतिकता की शक्ति का आभास होने लगता है। कभी विद्यार्थियों के शोर तो कभी अनुशासन के आदर्श का दृश्य आंखों के सामने उपस्थित हो जाता है। कभी यूनिफॉर्म पहने मन मोह लेते बच्चे तो कभी आदर्श अध्यापिकाओं की उपस्थिति का मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आज हम एक लघु नाटिका के माध्यम से विद्यालय में सिखाए जाने वाले आदर्श मूल्यों का जीवन में महत्व समझेंगे। अरे कहाँ तक? सौम्या, सौम्या, स्कूल नहीं जाना बेटा, ऑटो आने का टाइम हो गया है। हाँ, अभी ऑटो नहीं आया है। तो नहीं आया है, कुछ लर्न कर लो। मोबाइल क्या देख रहे हो? अरे माँ, मोबाइल से तो पढ़ रहे हैं। दीदी कैसे पढ़ रही है? छोड़ दो यार। माँ, मोबाइल से आजकल पढ़ाई होती है, आप नहीं जानती हैं। सौम्या, मम्मी जो कह रही हूँ उसको सुन लेना चाहिए। अरे दीदी, आप नहीं जानती हैं। चलो चलो, ऑटो आ गई, तैयार। ये मोबाइल कहाँ जा रहा है? मैथ्स पीरियड है। माय गॉड, मैंने तो होमवर्क किया ही नहीं। किसी ने होमवर्क किया है? प्लीज मुझे कॉपी दे दो, मैं उतार दूं प्लीज। खुशी ने होमवर्क किया? नहीं, मैंने तो होमवर्क नहीं किया, कल मैं पार्टी में गई थी। मैंने भी नहीं किया। मोबाइल रिचार्ज नहीं था, मैं क्या करूं? अभी मैं साथ आई थी, दे दो। मेघना, किया है? हाँ किया है। ये होमवर्क कर तो ले तू, लेकिन मैं तुझे कहती हूँ कि अपना होमवर्क खुद किया कर। मिस ठीक कहती है होमवर्क करने से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और हम भविष्य में कुछ कर पाएंगे। आगे से नहीं दूंगी। थैंक यू। सिमर, तुमने इसे क्यों दिया अपना होमवर्क? पता नहीं है ये कितनी छुट्टियां लेती है। अरे यार, दे दिया, इसलिए दे दिया कि भी डांट खाएगी और पूरी क्लास का टाइम बर्बाद होगा।
मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। चलो प्रेयर करो बेटा। Oh God, bless us to read our lessons well. ओके बेटा बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ। कल हम लोगों ने जो पाठ पढ़ा था, उम्मीद है वो सब आपको याद हो गया होगा। और समझ में भी आया होगा। तो तुम कहाँ थी अब तक अनुग्रह? मिस रोक ली थी। क्यों? मिस चोटी करना भूल गए थे, सुबह शैम्पू किए थे। तो तुमको पता है ना कि सिस्टर हमेशा अनाउंस करती हैं कि प्रॉपर यूनिफॉर्म में आया करो। यस मिस, सॉरी मिस। चोटी बना होना चाहिए, नेल्स नहीं बड़े होने चाहिए, तुमको पता है ना? यस मिस। फिर भी तुम लोग वही काम कर रहे हो। सॉरी मिस। चलो आ जाओ। थैंक यू मिस। तो बच्चों सबने अपना काम किया है? Yes, ma'am. चलो मुझे कॉपी दिखाओ। सिमर तुम्हारी कॉपी कहाँ है? वो मिस मैं लाई तो थी। तो कहाँ गई कॉपी तुम्हारी? मिस ने मेघना को दे दी है। ये क्या है सिमर, तुमने मेघना को क्यों दी अपनी कॉपी? सॉरी मिस। मैंने कहा है ना कि बच्चों को कॉपी मत दिया करो, सब अपना काम खुद करेंगे। बैठ जाओ। सब अपने अपने नोट्सबुक निकाल लो। जो मैंने कल पढ़ाया था पाठ, और मैंने क्या पढ़ाया था? विद्यालय का महत्व। अरे मेघना तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं मैम। कुछ तो कर रही हो। कुछ तो नहीं क्यों? अभी तो तुम कोई काम कर रही थी। मैम। मैंने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 कर लिया था। और बाकी के क्वेश्चंस? क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 रह गया मैम। कैसे रह गया? बाकी बच्चों ने तो पूरा किया है। मैम मोबाइल रिचार्ज नहीं हो पाया था, कैसे करती मैम? तो तुम इसीलिए सिमर की कॉपी ली हो, है ना? तुम मोबाइल से पढ़ती हो? ठीक है बेटा, मोबाइल से पढ़ो। आज के जमाने में नेट से पढ़ाई होती है, लेकिन जो विद्यालय हमें सीख देता है वो हमें नेट से नहीं मिलता। विद्यालय आने पर हमें नैतिक मूल्यों की जानकारियां होती हैं, हमारा सर्वांगीण विकास होता है। इसलिए हमारे लिए विद्यालय बहुत जरूरी है। इसलिए कि हम विद्यालय में आते हैं, विद्यालय में आदर करना, एक दूसरे के साथ सहयोग करना और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना, बड़ों का आदर करना, छोटों को स्नेह देना, ये सब कुछ सीख पाते हैं। इसलिए विद्यालय आना और विद्यालय का काम करना, जो टीचर पढ़ाती है वो बहुत ज्यादा आवश्यक है। उम्मीद है तुम समझ गई होगी। यस मिस। चलो बैठ जाओ और अपनी डायरी निकालो। मिस डायरी नहीं लाई है। तुम्हें कैसे पता कि मेघना डायरी नहीं लाई है? मिस रोज नहीं लाती है। मिस लाई हूँ मैं, देखिए ना, लाई हूँ मैं। चलो डायरी दो और मैं इसमें कंप्लेन लिखती हूँ, मम्मी पापा से साइन करा लेना। सॉरी मैम, प्लीज। सॉरी मैम। साइन करा के और फिर ले आना कल, मैं देखूंगी। थैंक यू मैम। के बेटा प्रेयर करो, चलो खड़े हो जाओ, प्रेयर करो। Thank you, Lord. Studied in the Spirit. Amen. ओके बेटा। धीरे धीरे दिन गुजरते जाते हैं। मेघना और सिमर पढ़ लिख कर दोनों एक समझदार युवतियां बन जाती हैं और इत्तेफाक से दोनों के लिए देश की एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। स्कूल की तो छुट्टी हो गई, चलो घर चले। नहीं, मुझे रुकना है। मुझे अपने सर से ना कुछ आइडियाज लेने हैं, एक एक्ट पुट अप करना है मुझे कल। अच्छा ठीक है, कल के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, आप अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? सर मुझे आपसे ना कुछ आइडिया लेनी थी, मुझे कल एक्टिंग करनी है। आप क्या मुझे मेरी हेल्प कर सकते हो? हाँ बिल्कुल। आपको पता है जीवन में किसी को हंसाना बहुत मुश्किल काम है। क्या जी सर।
क्या आप कोशिश करना चाहेंगे? जी सर बिल्कुल, आप सिखाएंगे, मैं कोशिश जरूर करूंगी। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे एक एक्ट करूंगा और आप उसको ध्यान से देखेंगे और उसको करने की कोशिश करेंगे। ओके सर। ठीक है। सर जल्दी करिए, मम्मी पापा वेट कर रहे होंगे घर के गेट के बाहर, प्लीज जल्दी आ जाइए सर। सर मुझे डांट पड़ जाएगी, जल्दी आइए सर प्लीज। थैंक यू सर। नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं आपके समक्ष आपका नेता, मेरा नाम पटाखा सिंह, मेरे पिताजी का नाम धमाका सिंह। मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। वैसे हूँ मैं बहुत महान, पर अपने मुझसे अपनी तारीफ नहीं करता, दिल का बहुत अच्छा। मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं अपने माता पिता की अकेली संतान हूँ। तो मेरे माता पिता मुझसे बहुत अधिक अपेक्षा पाल रखे थे, इसीलिए 12वीं की परीक्षा देते ही पिताजी ने मुझे मेडिकल, इंजीनियरिंग और कलेक्टर तीनों की परीक्षा दिलवा डाली। जब मेरी रैंक आई, नोट पे लिखे हुए डिजिट देखे हैं ना आपने, इतनी बड़ी रैंक थी मेरी जिसे याद रखना बहुत मुश्किल था, पर घर में कुछ तो बोलना था। पिताजी का दिल टूट गया, किंतु माता ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा इसे सुधारने का एक और प्रयास किया जाएगा, चलो इसका विवाह करवा देते हैं। पर समस्या यहां भी थी, मैं मांगलिक था ना, तो मुझे कन्या भी मांगलिक चाहिए थी। तो पंडित जी आए और उन्होंने एक उपाय बताया कि आप अपने पुत्र का विवाह किसी वृक्ष से करा दीजिए। माता को उपाय बहुत अच्छा लगा, पर समस्या हुई कि जब कॉलोनी में सारे वृक्षों को ढूंढा गया तो सब विवाहित निकले। अब क्या किया जाए? पंडित जी ने कहा आप स्वयं एक वृक्षारोपण कीजिए। माता ने तुरंत एक वृक्ष को घर में लगाया। धीरे धीरे वृक्ष बड़ा होने लगा। मुझे लगा अब मेरे विवाह की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। विवाह का दिन भी आया वृक्ष से, परंतु तभी दूसरे पंडित ने हस्तक्षेप करते हुए बोला नहीं, इस का विवाह इस वृक्ष से नहीं हो सकता। कारण वो वृक्ष किसने लगाया था? मेरी माता जी ने, और मुझे जन्म किसने दिया? मेरी माता जी ने। तो इस लिहाज से वो वृक्ष मेरी बहन था। खैर माता पिता के सारे अथक प्रयास असफल रहे। मुझे नोटों में बहुत रुचि थी, तो मेरी अपनी रुचि को देखते हुए सोचा क्यों ना राजनीति में हाथ आजमाया जाए, और मैं बन गया नेता। मैं आपको अपने कुछ प्रयासों जो मैंने बहुत अच्छे काम किए उसमें से कुछ का उदाहरण देना चाहता हूँ। एक बार मैं टिम्बकटू का मुख्यमंत्री था। टिम्बकटू में घनघोर वर्षा और टिम्बकटू डूबने लगा। मैंने तुरंत इंजीनियरों को बुलाया और नदी जो थी उस पुल का निशान 2.5 फुट ऊपर करा दिया और टिम्बकटू को डूबने से बचा लिया। तालियां! रुकिए और सुनिए। देखिए, ना तो मैं नेता हूं और ना ही अभिनेता। अभिनेता तो मुंबई में मिलते हैं। मुंबई के चश्मे बहुत प्रसिद्ध हैं। वैसे चश्मे तो कश्मीर में भी मिलते हैं। कश्मीर बड़ी सुंदर जगह है। वैसे सुंदर तो कैटरीना कैफ भी हैं। उनकी पहली पिक्चर का नाम था
मैंने त्याग क्यों किया? जिसके हीरो थे सलमान खान। सलमान खान आप सब जानते होंगे, और सलमान खान बहुत बहादुर व्यक्ति हैं। बहादुर तो शेर भी होता है, और शेर 40 मन का होता है। और मन तो बहुत चंचल है। चंचल मधुबाला की छोटी बहन का नाम था। वो बहुत सीधी थी। सीधा तो खंबा भी होता है, और वो बहुत मजबूत होता है। मजबूत तो कुत्ते की पूंछ भी होती है। बस यही मेरा चुनाव चिन्ह है। कृपया इस पे मुहर लगाइए और भारी मतों से मुझे विजयी बनाइए। धन्यवाद। सर वाह, मैं यही करूँगी, मुझे थोड़ा सा और प्रैक्टिस करवा दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल बेटा, आप इससे अच्छा प्रयास कर सकते हैं। मैं आपको सिखाने वाला होता कौन हूँ? दरअसल मैं एक शिक्षक हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ये जो सब बैठे हैं ना, ये मेरे जज हैं। ये मुझे सही तरीके से परखते हैं। सीखता तो मैं आपसे ही हूँ कि किस तरीके से पढ़ाना है। सिर्फ आपके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ दिल से। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे मेहरबान को बुलाया है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। मेघना और सिमर दोनों अब बड़ी और समझदार युवतियां बन चुकी है और एक बड़ी कंपनी से ऑफिस इंटरव्यू के लिए एक साथ पहुंचती हैं। हाय मेघना। हाय सिमर, तू कहाँ? अरे मुझे इस कंपनी से जॉब के लिए ऑफर आई है, और तू? मुझे भी ऑफर आई है। ओह माय गॉड, कितनी खुशी की बात है। हम दोनों साथ साथ काम करेंगे ना। आशल बैठते हैं। और सिमर, बाकी की पढ़ाई ठीक रही? यार वो देख, वहां पर कोई एक व्यक्ति ना, कुछ ऐसा नहीं लग रहा कुछ छुप छुप के काम कर रहा है? कहाँ? वो देख ना टेबल के पास। जाने दो, करने दो, हमें क्या करना है। नहीं नहीं, हमें सिखाया गया है अगर हमारे सामने कुछ गलत होता है तो हमें रोकना चाहिए। कौन सा तेरे घर का है, परेशान है तू? इंटरव्यू के लिए जा रही, थोड़ा टॉपिक रिवाइज कर ले बहन। नहीं, मुझे तो देखना ही होगा। एक्सक्यूज मी सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं बिना बताए? मैं पूछ रही हूँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं बिना बताए? एक्सक्यूज मी। यस, सर, आप बिना बताए क्या कर रहे हैं? आप इंटरव्यू देने आए हैं तो फिर जाओ बैठो। देखिए, आप सीधी तरह से नहीं बताएंगे तो मैं ऑफिस के ऑनर को इन्फॉर्म कर दूंगी। देखा, भगा दिया। काम तो तूने अच्छा किया, पढ़ाई लिखाई जरूर काम आती है। जिंदगी कई रूपों में हमारी परीक्षा लेती है। क्या आपको पता है वो व्यक्ति कौन था जो बिना पूछे छुपकर सामान उठा रहा था? वो कोई और नहीं बल्कि उस कंपनी के मालिकों में से ही एक था जो कैंडिडेट्स के मॉरल्स को जानने के लिए ऐसा कर रहा था। डर लग रहा है ना मेघना? क्या डर है, डिग्री है ना। सिमरन को अंदर भेजिए। सिमरन कौन है? जी मैं हूं। प्लीज बी सीटेड। सिमर अपने सामने उस व्यक्ति को देखकर चौंक जाती है जिसे उसने बाहर
पैसे उठाते हुए देखा था। सर आई एम वेरी सॉरी, मैं समझ नहीं पाई चीज़ों को, मुझे माफ़ कीजिएगा। इट्स ओके। अपने बारे में कुछ बताइए। जी मेरा नाम सिमर है और मैंने कामल इंटर कॉलेज से पढ़ाई की है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और थोड़ा सा मुझे वर्किंग एक्सपीरियंस है, लेकिन बीच में मुझे काम छोड़ना पड़ा। बहुत अच्छा। आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की और आप इससे पहले कहीं और भी काम किया है आपने? सर मैंने अपनी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है और इसके पहले मैंने कहा ना कि मैंने जैसे काम किया, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मुझे काम बीच में छोड़ना पड़ा। कोई बात नहीं, आप यहीं से हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको हमने अपने कंपनी के लिए यहाँ पे बुलाया। आपका सब सर्टिफिकेट वगैरह हमने देखा है, अच्छा है। आप ऐसा कीजिए, अभी थोड़ी देर के लिए आप बाहर बैठिए, हम आपको कॉल करते हैं, बुलाते हैं। नेक्स्ट। थैंक यू। बैठिए। थैंक यू मैम। आपकी क्वालिफिकेशन? मैम मेरा नाम मेघना है। मैंने कामल स्कूल से अपने क्लास 12 तक की पढ़ाई की है और ग्रेजुएशन के लिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लिया है। आपका एक्सपीरियंस? मैम मैंने टाटा कंपनी में 5 वर्षों तक काम किया है, मुझे अच्छा अनुभव है। ये है मेरा। ठीक है, आप बाहर वेट करिए, अभी थोड़ी देर में बताया जाएगा। थैंक यू मैम। ठीक रहा। ऑल द बेस्ट। सिमरन आपको बुलाया जा रहा है। जी जी सर। बैठिए। हमने अपनी कंपनी के लिए आपको सेलेक्ट किया है। थैंक यू सो वेरी मच सर। आपका सारा सर्टिफिकेट बहुत अच्छा है। खास तौर से हमने आप में देखा कि आप में नीतिगत बातें पाई जा रही हैं और जो कि हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। जी सर। और मुझे उम्मीद है कि आप अपने काम को बड़ी ईमानदारी से करेंगी। जी मेरी पूरी कोशिश रहेगी सर। थैंक यू सो मच। क्या हुआ? सिलेक्शन हो गया। देखा आपने, एक सफल व्यक्ति सिर्फ इसलिए ही नहीं सफल होता क्योंकि उसके पास अपार योग्यताएं हो, बल्कि उसकी सफलता के पीछे उसके व्यक्तित्व में छुपे ऐसे अनेक नैतिक मूल्य होते हैं जो कदम कदम पर उसके जीवन को मार्गदर्शित करते हैं। ऐसे व्यक्ति सफल तो होते ही हैं, साथ ही लोगों के सम्मान एवं स्नेह के भी भागी बनते हैं। सभी बच्चों को मैं गुड विशेस देना चाहता हूँ, स्पेशली आज क्योंकि आप लोगों का दिन है उसके लिए। और एक गाना एक्चुअली मैंने लिखा था अभी थोड़े ही समय पहले, ठीक है। और इसमें कुछ वर्ड्स हैं, जैसे साहिल एक वर्ड है, तो साहिल जो वर्ड है बेसिकली किनारे के लिए बोला जाता है, ये उर्दू का वर्ड है। और एक वर्ड और है बस्ते। बस्ते समझते हैं आप लोग? बैग, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो इसमें आएंगे, तो मे बी कुछ बच्चे नहीं समझ पाए, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग इसको समझ पाएं, ठीक है।
मेरा प्रॉब्लम है, मैं लिरिक्स भूल जाता हूँ, ठीक है, तो मुझे करना पड़ रहा है। ओके। साहिल पे खड़े होके तुम यूं न डर जाना, ये एक स्टूडेंट की व्यथा है, उसका दर्द है। साहिल पे खड़े होके तुम यूं न डर जाना, जाओगे पार करके तो देखेगा ज़माना, जाओगे पार करके तो देखेगा ज़माना, साहिल में खड़े रह के तुम यूं न डर जाना। परेशानी बहुत है, जिम्मेदारी बहुत है, परेशानी बहुत है, जिम्मेदारी बहुत है, तुमसे मेरे बच्चों हमें उम्मीदें बहुत है, तुमसे मेरे बच्चों हमें उम्मीदें बहुत है, रुकना नहीं कभी भी तुम बढ़ते चले जाना, रुकना नहीं कभी भी तुम बढ़ते चले जाना, जाओगे पार करके देखेगा ज़माना, बस्ते का बोझ सहते हो और फिर भी पढ़ते रहते हो, बस्ते का बोझ सहते हो और फिर भी पढ़ते रहते हो, इन नंबरों की दौड़ में ताने हजार सहते हो, इन नंबरों की दौड़ में ताने हजार सहते हो, काबिल बनोगे एक दिन इन सब से न घबराना, काबिल बनोगे एक दिन इन सब से न घबराना, जाओगे पार करके तो देखेगा ज़माना, बनोगे एक दिन देखेगा ज़माना, काबिल बनोगे एक दिन देखेगा ज़माना। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। महक जाऊं मैं आज तो ऐसे फूल बगिया में,
है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। स्वर्ग से धरती खिल रही जैसे, मेरा मन भी तो खिल रहा वैसे, कोयल की तरह गाने कारवां, मछली की तरह मचलू ये अरवां, जवानी है लाई रंगीन सपना, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। Every day is a fashion show and the world is your runway. So always dress your best and walk with confidence. Good morning, dear children, and we wish you a very happy Children's Day. Fashion is the essence of our lives. To show the plethora of glitz and glamour, coming up on stage, the evergreen actors from all the eras of cinema. Starting with the era of simplicity and beauty, the Sharmana, Rootna and Manana, Nazre Jhukana and Churana. Let's call upon one of the most beautiful actress of the 60s, the Sayonara girl, Asha Parekh. Happy Children's Day. हिंदी सिनेमा के अब तक के मेरे हिसाब से सबसे मोस्ट टैलेंटेड एक्टर संजीव कुमार, जिसका एक प्रतिबिंब के रूप में मुझे प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, उनकी एक बहुत अच्छी फिल्म आई थी ईमान और धर्म, जिसमें एक छोटा सा रोल था जिसका चित्रण यहाँ पर हम करेंगे, जिसमें उन्होंने, उनके पिताजी एक बहुत बड़ी बिजनेस टाइकून थे और वो एक बहुत आध्यात्मिक, संजीव कुमार बहुत एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे जिनका बिजनेस में कोई रुचि नहीं था। संजीव कुमार के पिताजी उनसे बिजनेस मीटिंग में जाने को कहते हैं, लेकिन वो इनकार कर देते हैं और उनके लाइब्रेरी में काफ़ी किताबें रखी रहती है। उस सीन को
संजीव कुमार के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। पिताजी कहते हैं कि इस किताबों से क्या होता है, तुम्हारे यहाँ तो तमाम ग्रंथ हैं। संजीव कुमार कहता है कि पिताजी मैं भी तो यही कहता हूँ, इन किताब काम जरूर करना चाहिए, एकदम करना चाहिए, लेकिन काम के साथ साथ हमको ईमान का काम, धर्म का काम और ईमानदारी का भी काम करना चाहिए। तो उनके पिताजी कहते हैं इन किताबों से क्या होता है, ये किताब तो सिर्फ लाइब्रेरी में रखने के लिए चीज होती है। तो उनके पिताजी कहते हैं और ये किताबें अलग अलग, बाइबिल भी हैं तुम्हारे पास ग्रंथ साहब भी हैं, तुम्हारे पास बाइबिल भी है और तुम्हारे पास गीता भी है, तुम तो अलग अलग किताबें रखते हो। तब संजीव कुमार कहते हैं इसको ध्यान से सुनिएगा जो अब आ रहा है। पिताजी आपके तो तमाम देशों में बिजनेस होंगे। कहते हैं हाँ है। आपको रूस से रूबल मिलता होगा, अमेरिका से डॉलर मिलता होगा, जर्मन से मार्क मिलता होगा, तो इंग्लैंड से पाउंड्स मिलता है। आप क्यों ये नहीं कहते कि मुझे सिर्फ रुपया में ही चाहिए, मुझे मार्क में चाहिए? तो पिताजी कहते हैं कि मेरा दिमाग खराब है, मुझे तो सिर्फ रुपयों से ही मतलब है। तब संजीव कुमार कहते हैं यही बात है पिताजी, चाहे ग्रंथ साहब हो, चाहे गीता हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे आपका कुरान हो, ये सब से हमको एक ही चीज मिलता है, ईमानदारी का धर्म, ईमान का धर्म। और इन सब से मुझे चाहिए आत्मा की दौलत। आदमी चला जाएगा लेकिन ये सब यहीं रह जाएंगी। आत्मा की दौलत, ये सिर्फ किताबें अलग अलग हैं लेकिन इनका भाव एक अलग है। आत्मा की दौलत जो हमको आपसे सबको जोड़ता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। द मिली ऑफ इंडियन सिनेमा जो मिली है अमिताभ बच्चन को। जया बच्चन। The short period charm of her time, Sheila Rahman. The Kasme Wadigar, Rakhi. Children, if you appreciate this, kindly clap, do not move. Big god of the industry to us, Rakesh Roshan. The only diva of the Indian cinema, filled with all the luscious of the world. तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो ऐसा होता। रेखा। Now let's spend an evening in Paris with Shami Kapoor. Give a huge round of applause to the teachers of the golden era. Now moving forward to the era of college romance, the beautiful memory of all times, the 90s. To start with, let's call upon the most girl of Indian cinema, Raveena Tandon. The most beautiful feature of Indian cinema जिसको देखकर ये दिल में वायलिन बजने लगते हैं, सुष्मिता सेन। The Thug Thug Girl
and Pehla Kumar on everyone. Aisha Zulfa. The hero number one of Indian cinema, Govinda. The actress filled with grace and simplicity, Priya Mirza. The chirpy and bubbly girl of Indian cinema, the Zara of the Veer, Preeti Zinta. The Sarfarosh girl, Sonali Bendre. मैं से मीना से न साकी से न पैमाने से दिल धड़कता है मेरा आपके आ जाने से आने आई है नियम The Damini of the Indian cinema, Meenakshi Shishavali. And one of my favorites, everybody knows. Who's my favorite? Salman Khan. The tiger, the sultan. ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है जिंदगी को तलाश है वही साथी है वही मंजिल है और जाने जाने तुझे दीवाना सपनों में रहते आज जिंदगी में और जाने जाने तुझे दीवाना सपनों में रहते Let us welcome with a huge round of applause. नहीं मैंने तो कमिटमेंट कर ली उसके बाद में मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ Let us welcome with a huge round of applause the Bazigar girl, Kajol. Please welcome Give a huge round of applause to the actors and actresses of the 90s era. Children, it's a humble request. Kindly do not hoot. If you are appreciating it, kindly clap, not hoot. Hooting means that you are not appreciating it. Moving on to the era of fast beats and peppy numbers, the millennium era. To start with, let's call upon the Ashiki girl of the industry, Shraddha Kapoor.
the Bangla Youth Industry, Alia Bhatt. The Desi girl who became the Desi, Priyanka Chopra Jonas. The girl who ruled the industry for more than 10 years, the girl with Ucha Lamba Kat, Katrina Kaif. The Jigar Chopra, the proper patroller of the industry, Pariniti Chopra. The gangs of Basipur girl, Uma Qureshi. The Khilari and the Anari. The Bade Miyan and the Chote Miyan. The Badshah and Shahenshah of the school. Hold on your breath to welcome them on stage. Akhilesh sir and Navneet sir. Kiara Advani. And now, it's time for the showstoppers, and it's merely impossible to choose a handful of them. So here I call upon all the divas and dudes of the institute to come up and grace the stage.
children. Yeah, Nehru is the one loved the children and he wanted this day to be celebrated as Children's Day. Yes or no? Yeah, we are all children in some way or other. We also grown up. At this age also, we become children sometime. So much more, you are children now. When you saw the joy on the stage of the teachers doing dance, masters doing dance, acting, I'm sure you enjoyed very nicely and you were elated. Hmm? Yes? Okay. Without children, our society will be nowhere. Children are the gifts to the society, but if they maintain their dignity, you are really precious in the society. Because nowadays children sometimes lose balance. Balance means their character they are losing. They are getting into easy ways. That is, we are spoiling our childhood. Let us not spoil our childhood. Always aim at something. You have to see in your life one bindu in front, and that I'm going to follow. If the bindu is on the mountain, there I'm going to reach. This should be your motto. Because sometimes children are misguided because of this nowadays media. Even the smallest one will have a mobile to use it. Smallest one. So we should not lose our balance. We have to become something in life. Your parents have got some aim, isn't it? Don't your parents have aim? Your parents have got some aim, yes or no? Your teachers have got some aim. What is that aim your teachers have? What is it? They want you to study well and come out successful. Your parents also, they want you to study well, be a good girl, and become something in society. Now, when I receive from the children in the Facebook or WhatsApp, my students who are passed out from here, they are in different countries. They send me sometimes the messages. I'm so happy to receive them and I'm happy to read. My students whom I was here for so many years and I taught them and they remember still. And this is what you have to do for your teachers, your parents. So that they remember, this is my child, this was my child, my student. That's why you need to be happy and a good child and a studious student. You are the joy giver. To whom do you give the joy? Don't know. Do you give joy to yourself? No. Do you give joy to your parents? Yes or no? Do you give joy to your teachers? Do you give joy to one another? Yeah, this side they are blank. They are not giving joy to anybody. Do you give? Then say loudly. Okay. We are here to give joy to one another. That is, should be a life of a child. In the family, when the child is born, your parents are very sad about क्यों और एक बच्चा हुआ. Do they say? What do they say? Ladki or ladka? What do they say? We are very happy to receive. And in the school also, when the students come to the school, we feel very, very happy. These are the future of our nation. So you children are the future of our nation.
of a society, of your parents. This is what, and that's why we have to live that life. And what you sow today, you'll reap tomorrow. If you have done something good now, in your childhood or in your adulthood, you will reap later on the fruit of that. Now we have planted some trees. Now when I left here, these trees and that side trees, I had planted, and that side I had got it planted. Now when I see, when I come, these trees are up within 7 years. I left in 2014 from here. I said, within 7 years, the trees have grown so big. I was yesterday telling, so nice to see the trees. And in the same way, you are today small, but you'll grow later on. You'll become something in society. So you will express yourself in different ways. That should be. Not like a Buddha Buddhi like this sitting or nothing bothers me. No, we are young children. So if you sow goodness today, kindness today, you will reap what? Later on, reap means you'll what? What will you reap? Joy in others. That should be there. So let us today pledge to create a safe place for the future of our country. You are the children. You are the children who will form the future. So you have to pledge, take an oath. I'm going to become this and this. Have you all planned in your mind something to become? You have planned? Okay, if you have planned, good. So remember to follow it. I was very happy to see your joy when the teachers acted on the stage. You wanted them to act still more, isn't it? But in the class, when you see the teacher, oh, ये teacher आ गई फिर मेरा class. Do you say that? हाँ? Oh, अभी हिंदी पढ़ना है, अभी इंग्लिश पढ़ना है, और क्या पढ़ना है? ओ मैथ्स पढ़ना है. हाँ? No, every subject is very important. It should. I'm so happy my teachers are coming to the class. I know when I was teaching English in 11th and 12th, my students were waiting for me. Sister is coming to the class. Because I used to tell some joke and act and something like this. I used to do, so they were very happy. They were waiting for my class. But I used to give them also tightly. And this one, Angela Miss will know. We were two competitors. I don't know whether she. I was taking up English and she also was taking up English in another class. So they were never used to be tired. So you also, when you see the program, you are not tired. But in the class, see that you become something in life. Now only you aim at it. I'm the future of my society. I'm the future of my family. I'm the future of my country. So I want to become something. This should be the aim of your life. Will you follow it? And live your childhood. Now already some of the children, not the growing. Now there are many things the nowadays children do. Because I've experienced when I was in Bhagalpur as a principal, some of the children, there was a lot of worry. They know where to keep their mobile, where to use and how to use, they knew. That shouldn't be, that will spoil your childhood. I was a very, like a crook. I knew exactly to catch them. They still remember that I used to catch them. And if they did not obey, then I dismissed them. I dismissed. During my tenure in Bhagalpur, 83 girls I dismissed. Because they were disobeying all the time the rules. I said, such children, I will not keep them in the school. I called the parents, take your child wherever you want, because
this school is not meant for you, for your child. Father was crying, mother was crying. But you don't do that. Your childhood as a student, live nicely but not doing the wrong things. Understood? Yes, correcting. If you want to bring something, inform the principal. Principal will say yes or no. Or first tell your teacher, from teacher to the principal, or directly go to the principal. Because children used to directly come to me many times. Sister, can I keep? No, I said no, you keep on my table, I will give you afterwards. This is what I used to tell them. Because this is what should be done. Because nowadays children are going astray because of the mobile. You are beautiful persons, you are children. You are not grown up, you are children. Live your childhood as Nehru, like the children. Your parents love you, your teachers love you, society loves you. Live that childhood in a proper way. All the best for you all. Be good children. Okay? Thank you. Sakshi, Akriti, and Anviti. I request Tripti to come up on the stage and take the certificates. Nagriya Athletics Competition. From Sub-Junior Group, Samiksha Mishra of 10th B has secured first position in shot put, first position in high jump, and third position in 600-meter race. Shagun of class 7C has secured first position in 100-meter race. Ritika Pandey from class 7C has secured third position in long jump, third position in shot put. Medha from class 7th has secured second position in discus throw. Kanchan from class 8A has secured first position in discus throw. Shivangi from class 7th has secured first position in long jump and second position in high jump. From the junior group, Anshika Yadav of class 7C has secured second position in 1500-meter race. Zia Varsi of class 10B has secured second position in 100-meter race and third position in 200-meter race. Priya Pandey from class 10th has secured second position in discus throw. Tripti Mishra from class 7C has secured first position in 1500-meter race. Manyata Rai from class 11 has secured first position in 200-meter race, first position in hammer throw, and third position in long jump. Kushi Gupta from class 10D
has secured second position in javelin throw, second position in high jump, and third position in discus throw. Now from the senior group, Khushi Yadav, hammer throw, javelin throw, and short put. Usha in 5000 meter race and 100 meter race. Nagma 5000 meter race. Pratima Minch, hammer throw, javelin throw. Vanshika 1500 meter race. High jump. Anamika short put, discus throw, and 200 meter race. Please clap for them. Pragati, debate competition. Give them a big round of applause. Children, keep on clapping, please do. Show your energy now. Now जनपदीय एथलीट प्रतियोगिता. Sub junior Shabam relay race, junior Manita Rai hammer relay race, and senior Khushi Yadav hammer throw and Pragati debate competition. Please come first.